Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up the newspaper of 3rd of December. Starting with the first news, UP declares Mahakumbh area as new district. So Mahakumbh is very intangible heritage of India. It has been given UNESCO World Heritage uh, site, and also the administrative part, and also the with regard to the security measures that has been taken up for the mega event. Eco-friendly initiative has been taken up, as well as the Kumbh area is now being utilized for promoting tourism and also sustainability with regard to culture and pilgrimage heritage. So approximately 400 million devotees will visit Mahakumbh. So focus is with regard to the dealing with the overcrowding areas, dealing with the fire issue, and third would be dealing with the sewage treatment part, and also overall how the tourism will not affect the pristine nature of the Ayodhya. That is why it has been declared a new district so that the administration can play a very important role in management of all the public utility system. International Day of Person with Disability, PWD. It is celebrated on 3rd of December. The population is 2.21%. And first, India ratified a UN convention in 2007 and it has passed 2016 PWD Act. And it focuses on reservation aspect, identification, making the public utility accessible, and further uh, making them mainstream with regard to the society, so that they should not they should be able to integrate themselves well into the employability as well as the overall perspective in society with regard to PWD. Further, the issue regarding the public with disabilities are first the laxity approach with regard to the government on the inclusivity of the public infrastructure. Second is with regarding to the skilling, because PWD identification of PWD requires certification program, because some PWD, some disability is not seen, so it carries a certain kind of a stigma. So what is needed? First of all, example of Karnataka is there. It is a where the state commissioner is performing a quasi-judicial body in collaborating with legal school and law school to in the respective capacity to increase the capacity building of the institution as well as the policies. Further, the cases with regard to the PWD should be assigned and it should be disposed in a very timely manner. For that, mobile adalat it is there, and grievances should be resolved for the public with disability and their families. Apart from that, there has to be certain kind of a management review of what the cases what are the cases are being taken, as well as what condition the PWD are facing. The grievances committee should be there. Then review of the whole PWD policy scheme should be there as practiced in Karnataka. Further, research in the field of disability right. We have discussed yesterday research security. Here also we can add why research is important, because it will lead to the multidimensional, multidisciplinary research of all the psychological stress is faced by PWD. Second would be how the medical devices and the equipment that is needed to make them inclusive can be manufactured in India. All these things requires certain coordination with the industries, civil society, NGO, as well as government. Hmm. Similarly, if we are taking up the nutrition element, how the malnutrition in the population leads to the higher rate of disability among the population. The nutrition intake also contribute to health issue that contribute disability. For example, chronic heart disease हो सकता है, CVD हो सकता है,
और दूसरा कि इफ मैटरनल न्यूट्रिशन इज वेरी लेस, इंडिया 50% एनीमिया है स्टंटिंग में। एनएचएफएस सर्वे के अकॉर्डिंगली 25%, 22% पेशेंट जो इंडिया में जो अंडर 5 years ऑफ एज है वो फेस करते हैं अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स अ डिसेबिलिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रेजेंस के कम होने से रिकेट्स हो सकता है, मैरास्मस होता है, फिर विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो what is needed? Nutrition element, which is lesser talk in the system, it should be promoted with regard to the disability. How Anganwadi should be roped in with regard to the young children, and also behavior challenges, behavior changes related to gender equality, social inclusion, nutrition from the early childhood development should be promoted. For example, how the midday meal as well as what is being given through ICDS program, food packet order, the quality should be maintained with the help of portion tracker, and the role of ASHA worker, it is here. For example, experience in Haryana, initiative वहाँ पर है नन्हे फरिश्ते. It was to educate the communities with regard to disabilities and enhancing the awareness of the Anganwadi Center regarding the inclusion of children with disabilities. When we discuss with disability, we always talk about reservation, and we also include their very important aspect of how the government should perform, how the government should implement. But the nutrition element with regard to the overall health and wellness of a disabled should be promoted. So three aspects it is there. First, disability certificate, identification, grievances, medical therapy, supporting services, and also मेडिकल रिसर्च शुड बी प्रमोटेड, क्योंकि डिसेबिलिटी के जो लिस्ट है उसके अंदर में कुछ कुछ जो डिजीज है इट इज नॉट बीन इंक्लूडेड राइट ऑफ नाउ. अफोर्डेबल असिस्टेड डिवाइसेस हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेबिलिटी स्टिग्मा इट शुड बी क्रिएटेड टू. तो वी हैव डिस्कस disability or associated challenges, nutrition element. No, we are moving towards how they can be skilled. There has to be certain kind of enabling level playing field. For example, Article 14, right to equality. 15, right against discrimination. 16 is equality in opportunity with regard to public employment. तो वहां पर भी there is a provision for positive discrimination, that is support to the marginalized section of society and vulnerable section of society. For example, SC, ST, OBC, SC, BC. तो वहां पर डिसेबल को भी आप सपोर्ट करने कैसे कर सकते हैं? with the help of awareness, with the help of sign languages and associated disease. जो डिसेबिलिटी उससे एसोसिएटेड कुछ टेक्नोलॉजी हो, फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज हो गया, फॉर एग्जांपल सबटाइटल हो गया, एंड ऑल सबटाइटल should also be there in local languages. Further, sidewalk, building, stadium, theater, sitting area, washroom, it should be made constructed in a very inclusive manner, or there has to be certain kind of a auditing mechanism to make the government accountable, to make the public and important institution accountable for the disabled friendly environment. Films such as Srikant and Margarita with it talks about sensitivity with regard to the representation of the disability in cinema. So our former CGI DY Chandrachud have stated stereotyping differentially abled person in visual media perpetuate discrimination. That is why accurate representation of disability should be promoted. We can use the important personality from the disabled people themselves for the right role, as well as we have to also use cinema for giving social messages. For example, artificial intelligence, LLM, it can augment the speciality as well as the role of the discipline. Then after the positive discrimination, one more aspect is there, that is technology, assisted technology. For example, hearing aid. For example, we can say bionic arm
हो सकता है। उसके अलावा फिर और भी एस्पेक्ट है जहां पर इट कैन हेल्प टू इंक्रीज द प्रोएक्टिविटी ऑफ द डिसेबल पीपल एंड ऑल्सो टू मेक देम इंटीग्रेट टू द सोसाइटी। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बिराक सोशल अल्फा कोर्स फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी that is supporting the startup in these areas. Further, list of essential assisted products should be implemented so that just like any LM, National Essential List of Medicines, it is there to make the medicine more accessible to the vulnerable society. वैसे ही डिसेबिलिटी के लिए भी एक एसेंशियल असिस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए जहां पर ओल्ड एज है उनको कुछ जरूरत पड़े या फिर डिसेबल पीपल है उनको कुछ डिवाइसेस जरूरत पड़े वो आसानी से मिल सकता है। तो जैसे 90% ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दे लैक एक्सेस टू असिस्टेड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर वी हैव टू फोकस ऑन असिस्टेड टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन एमएसएमई, वी हैव टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ civil society as well as important institutions such as IIT and BIRAC. Then Indian Council of Medical Research can play a very important role in customization of individual assisted technology to make them more creative and more inclusive in the society. To deal with the municipal waste, which is very important day to day life because 20% of the municipal waste is only recycled, whereas rest of it is dumped. Biomethanation facility, it is put on fast track by MCD. It focuses on biodiversity of the wet waste, which lead to the methanization and use of the CBG, that is compressed bio natural gas, and CNG compressed natural gas, and it can be used as a part of the waste to energy plant. So my biomethanization is a keyword. Many of the important cities in India, for example, Delhi, then Lucknow, Patna, even Mumbai faces AQI more than 280, 400. But Chandni Chowk, it is among least populated cities, spots in city. Why? First of all, here traffic restriction is one of the main reasons because IIT Kanpur had led the report which stated that 20 to 25% more than that it is caused by road dust and traffic. Only 10 to 12% is from the stubble burning and 8 to 5% is from fireworks, etc. So if we are curbing the traffic as well as road dust, it creates a good AQI index at a local level. Further, focus on planting of trees and creating of a air shed location close by makes the air quality index good. But the ultimately the focus should be on adoption of the EVs because traffic restriction one part, adoption of the EVs, then adoption of the public utility vehicles, public transportation like RRTS and metro, and apart from that, solution should be creating of urban forest, that is plantation of trees like it is mentioned in the picture, should be promoted because it absorbs the dust and it protects the nearby houses from the PM 2.5 and PM 10 directly. Recently, Trump had stated that all the BRIC members they will adopt the de-dollarization program. Then they have to face 100% tariff. So, what will happen if Trump will go on with its policy to impose 100% tariff on the BRIC member? The first, what is needed for the countries to mitigate such challenges from the US and Western countries? The first, international rupees, it is there. It is a alternative model of the BRIC currency. For example, rupee ruble trade, then rupee dirham with regard to UAE, cross border payment.
so that the SWIFT mechanism, which is putting pressure on Russia, they sanction Russia, it can be bypassed. Already, India buys oil and natural gases from Russia in a local currency method. Second, many of the foreign ministers have already stated that pursuing the policy of the de-dollarization, it is not targeting dollar or seek to move away from it. We are just using alternative routes so that the global inflation as well as finance system under the SWIFT can be bypassed, it can be mitigated. Then even the high tariff, which will be which will be used by US to bully the countries like India and others, it can it can just impact the inflation and the consumer productivity as well as the purchasing power in the US itself, because the import cost will increase. And further, China is a very dominant, it plays a very dominant role in bloc. So it is very important that alternative mechanism, that is BRICS currency or even international rupees or even trading in the local currency, we need certain kind of a reassurance between the China and India with de-escalation program that is being started from the Kazan meet. It is becoming clear that slowly country will move toward de-dollarization, but not at a faster pace. It will move in a very sustainable manner. Cassie, so first of all, all the countries is now focusing on strengthening the multilateral institutions such as NDB and AIB apart from World Bank. Second would be they're focusing on reform in the overall structure of the UN. As of now, third Voice of Global South Summit, which took place in August 2024, they explicitly they mentioned the importance of the reform. Then third would be regarding the overall central bank digital currency, which is an initiative to push the internationalization of financial platforms such as UPI that has been taking place in Singapore, UAE, France, etc. So rather than direct implementation of the BRICS currency, India and others, they are adopting an alternative model that is focusing on local currency and also the basket-based currency. So we have discussed how India is increasing its stature in the international platform to support the multilateral institution, the BRICS Bank. India has gone to $2 billion right of now. Why it is important? Because it will make the countries like African Union countries and others in Latin America and Asia to get viable project from the BRICS Bank rather than they are depending on the World Bank as well IMF. Further, in the BRICS Bank as well, the role of China and the stature of China will be mitigated. So, in the longer run, the countries that is getting debt from the BRICS Bank will not amount to debt trap policy. In 1992, all in the Rio meet, three conventions were signed, that a UN Convention on Climate Change, UNFCCC, UNCCD, and UNCBD. So CCD talked about how to mitigate the land degradation. In the longer run, land degradation plays a crucial role because land degradation does not only talk about removal of trees, but it also talks about the present scenario of overall biodiversity in particular region. For example, savanna grassland है तो उसको savanna grassland रहने देना चाहिए rather than converting into the urban space or even creating a forest in that area. वो भी degradation कहलाएगा. So land degradation is a very complex issue, and it is a concern because it is impacting the nutrition element,
food security, energy security, clean water, and it also leading to the soil erosion. तो अलग अलग data दिया है. 60% of global forest cover. It is safe. And further, 46% dry land है, home to third humanity. Dry land is also increasing. हर जगह देखते हैं. For example, Sahel region maybe it is increasing, eating away the central part of the African region. Even Thar desert, it is also increasing and is reaching the Punjab Haryana area. 20% decline in soil CO2 absorption capacity if there is a degradation. Further, 25% biodiversity is found in soil in the form of soil organic compound और उसमें अलग अलग एजोबैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, अलग अलग स्पीसीज रहते हैं सॉइल के अंदर है which again gets impacted from land degradation. So क्या चाहिए? पहली बात है कि soil is a very important carbon sink. Soil organic compound, it can be used as a carbon credit mechanism for the by the farmers as well as the institution. Further, the pond challenge that is under the land degradation program talks about how to mitigate the solution in the longer run. That is intergovernmental body, IPCC, and others which deals with the technological aspect, that is assessing the land degradation program under the NISAR and land use pattern. Then third would be regarding the national determined contribution with regard to climate change and associated SDG goal by specific countries. Sustainable agriculture irrigation practices हो सकता है. Use of simple steps such as nano urea. It leads to less soil erosion and soil pollution by the heavy usage of urea and others. And sustainable urbanization. It also leads to the mitigation of the degradation processes. जैसे हॉटस्पॉट रीजन जहां कहाँ पे साउथ एशिया में, नॉर्दर्न चाइना, हाई प्लेन इन कैलिफोर्निया, इन इवन इन साहेल रीजन अफ्रीका के अंदर में. तो ड्राई लैंड से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इक्रीसैट. Over the years, in last 2 to 3 years, we have seen there was a riot in Sri Lanka presidential bhavan, which ousted the Rajpaksa family in Sri Lanka. So Sri Lanka faced crisis. Then Nepal also faced crisis, certainly after 2015 earthquake, and slowly they were moving towards China, and they were having border issue with India regarding Kalapani, Limfjordora, and Difu Lake, and also with Bangladesh. Recently, BNP-led government, led by Muhammad Yunus, led to the certain kind of a coup in Bangladesh. Further, Pakistan is destabilized from within. We have seen regarding the recent clashes between the PTI worker as well as the government of Pakistan. So neighborhood is on edge. There is a deep ideological division between the India, Pakistan, and Bangladesh. It is creating an insecurity dilemma between the countries. So Indian state, being a very important country, it is a harbinger of overall South Asia region. So it becomes imperative on the Indian state to stabilize, to focus on peace diplomacy in neighborhood. For example, क्या कर रहे हैं हम लोग म्यांमार के लिए? We are focusing on dialogue. Recently in September, many of the stakeholders in Myanmar's politics, for example, rebels as well as junta government official, they had come to Delhi for the negotiation part. It is one step. Then second would be focusing on dialogue and peace process in Bangladesh with regard to minorities as well as the protection of the investment that is being there in Bangladesh. Then third would be focusing on disengagement and de-escalation with the China. After especially the Kazan summit, slowly we are moving ahead with that kind of thing. Then
Fourth would be regarding the Nepal. What we are doing, we are focusing on hydroelectric project as well as employment generation and energy projects. For example, India has invested sums of money for creating of a 10 gigawatt based hydroelectric project in Nepal, and also giving the Nepalese employment opportunity in India. Then fifth would be regarding the Pakistan element. India has clearly mentioned that no talks will be done with Pakistan until and unless they are acting against the terrorism. So even in SU summit, which had taken place in Pakistan, India had clearly mentioned that it was a multilateral summit. It was not a bilateral meeting with Pakistan. So, with regard to the India, it it is facing a challenge, but slowly we are moving ahead with the processes to stabilize the region accordingly. रिसर्च सिक्योरिटी, जब हम लोग कल बात किए थे, हर एक एस्पेक्ट में इंटेलिजेंस, सिविल सोसाइटी, एनजीओ के बीच में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बीच में होना चाहिए. इवन वर्ल्ड बैंक जब बात कर रहे थे रिगार्डिंग द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया, दे फोकस्ड ऑन रिसर्च एलिमेंट. देन हम लोग हायर एजुकेशन बात करते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था आज से एक महीना पहले विद रिगार्ड टू द कोई इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनके अंदर में दो एस्पेक्ट होते हैं, प्रोफेसर जो बिजी रहते हैं रिसर्च में और जो प्रोफेसर होना चाहिए पढ़ाने के लिए, दोनों में डिवीजन होना चाहिए. तो हर जगह रिसर्च का बात हो रहा है, लेकिन रिसर्च जब भी हम लोग बात करते थे कभी हम लोग पेपर्स और रिसर्च सब्सक्रिप्शन का बात नहीं करते. तो राइट नाउ इंडिया टू क्रिएट अ वेरी ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम यूनिक इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज India has passed the policy with regard to open accessibility of the subscription based model. It will lead to the research paper, or it will disseminate the research paper freely in a very affordable manner, in a very for 3 years to every citizen of the country. The ONOS, one nation one subscription, उसमें approximately 280 million dollar खर्च होगा, 6,000 crores it will be spent for the research. तो इसमें challenges पहला क्या है, पहले फायदा क्या होगा. पहली बात है कि जो भी PhD स्टूडेंट होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, इनको कोई रिसर्च पेपर चाहिए विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कोई प्रोडक्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल MSME के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाना है, पेटेंट रहते हैं, तो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है, बहुत महंगे आते हैं, तो वो एक तरह से सस्ते हो जाएंगे. दूसरे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगा, लोगों का एक तरह से दे विल बी इंस्पायर्ड टू पब्लिश मोर एंड मोर. दूसरा, जो रिसर्च पेपर के अंदर में प्लेजरिज्म होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च पेपर विल बी अवेलेबल टू द इंस्टीट्यूशन, सेवरल इंस्टीट्यूशन एज वेल. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? पहली बात है, जो डिजिटल कंटेंट इस्टेब्लिश होगा, क्या उसके ऊपर पायरेसी और उसको रिकॉर्ड करके अलग से रिसर्च पेपर यूज नहीं कर सकते. दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट कि जो रिसर्च पेपर इस्टेब्लिश होगा, क्या हर कोई इसको यूज कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशन है और उनके स्टूडेंट्स हैं. तो ये चैलेंजेस है. दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आता है कि वी हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टू पब्लिश रिसर्च पेपर, क्योंकि आप रिसर्च पेपर तो अवेलेबल करवा दोगे, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन पब्लिशिंग रिसर्च पेपर एज वेल. एक उसका व्हाट कुड ONOS कुड हैव बीन डन. तो पहला इसमें आता है, तो बड़ा कर उसमें, तो कॉपीराइट. तो ऑथर्स कैन बी रिटेनिंग कॉपीराइट, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एंड आल्सो इंप्रूविंग सेल्फ रिलायंस इन स्कॉलरली पब्लिश, ये हो सकता है. शॉर्ट टर्म इसमें चैलेंजेस है, लॉन्ग टर्म में इसमें ओवरऑल फायदा है. और दूसरा एक और चैलेंजेस में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन यूज अ रिसर्च पेपर एंड इट कैन क्रिएट इट्स ओन. तो एक चैलेंज हो सकता है विद रिगार्ड टू द मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च पेपर इन लॉन्गर. तो वी हैव टू फोकस ऑन ट्रैकिंग, ऑडिटिंग ऑफ द रिसर्च पेपर, एज वेल एज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो बायस आने वाले समय में आएगा विद रिगार्ड टू पब्लिशिंग ऑफ द रिसर्च पेपर, उसे फोकस करना चाहिए. तो ONOS इज स्टेप अहेड.
And some institutional stakeholders related to this include InfliBidNet Center, which is the Information and Library Network Center based in Gandhinagar. So even it would be in a way heading this initiative. So it will be further collaborating with UGC, Ministry of Education. It will oversee that UGC Infonet Digital Library Consortium that is again playing important role in the availability of these e-journals. One question arises that these e-journals, they would be dominated by the Western journals that have been हाँ. published. So role of India को क्या हम promote करेंगे नहीं करेंगे, and one subscription, तो how are we going to achieve that one subscription rate also, that is also a concern कि जो मतलब जर्नल्स तो हर नेचर की अवेलेबल होने वाली है, 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स अवेलेबल होंगी. हम्म. इंडिया में 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. देयर इज अ shortage of judges, 20 to 30% shortage of judges in high court and even in lower court. इवन विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, 12% सिर्फ विमेन है, 8 to 12% है इन जजेस. तो दिखाते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड्स अ ओवरहॉल, नीड्स अ रिजुविनेशन. कैसे होगा? तो फेयरनेस और स्पीड में दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि स्पीड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड बात होता है, लेकिन एट द सेम टाइम स्पीड के कारण फेयरनेस आप कम नहीं कर सकते. फेयरनेस हैज टू बी डन. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 142 के अंदर में कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट एंड टू इन्फोर्स डिसीजन बेस्ड ऑन जस्ट एंड फेयरनेस. तो कैसे आ सकते हैं दोनों के बीच में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस शुड बी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. कैसे फास्टर एक एस्पेक्ट आता है जिसमें जस्टिस जज जब डिसीजन लेते हैं तो डायरेक्टली वो सेंड कर सकते हैं सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो फास्टर एक प्लेटफॉर्म है. दूसरा ई कोर्ट एसेसिबिलिटी है, तो स्पीड बढ़ेगा. फेयरनेस करने के लिए देयर हैज टू बी सिस्टम. फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन काउंसिल है ताकि दोनों के बीच में सहमति है. लोक अदालत है, ग्राम न्यायालय है. और दूसरा कि रिटायर्ड जो ऑफिशियल है विद रिगार्ड टू जुडिशियल प्रोसेसेस दे कैन आल्सो बी रोप्ड इन व्हेन नीडेड. फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया जो स्पीड भी है और फेयरनेस भी है दोनों के अंदर में. फर्दर दूसरा जो की एस्पेक्ट आता है विद रिगार्ड टू द लॉयर्स. तो लॉयर्स के लिए नालसा है, डालसा है, दैट इज गिविंग गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ अ सपोर्ट टू द वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर स्पीड एंड फेयरनेस. हाँ, तो 39A के अंदर में नालसा का असिस्टेंट रहता है, लीगल असिस्टेंट. अब इंडिया में अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा था कि हंटर बाइडेन जो बेटे हैं जो बिडेन के, तुमके ऊपर रिपोर्ट बना था 630 पेजेस का, जिसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक, प्रोस्टिट्यूशन सब फोटोज और इवन मैसेजेस सब वायरल हुआ था. और वो आज भी है, जो बिडेन expose.com में जाकर देख सकते हैं. तो डायरेक्टली दिख रहा है सामने में कि ही वॉज गिल्टी और उसका केस भी चल रहा था, लेकिन ही हैज बीन पार्डन बाय द पापा हिमसेल्फ. ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो बिडेन. तो ये दिखाते इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ क्वेश्चन मार्क, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्वेश्चन मार्क. तो उस पर चर्चा नहीं करते, इट इज पॉलिटिक्स. बट वी हैव टू फोकस ऑन इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर. तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट के पास. फॉर एग्जाम्पल इंडिया आर्टिकल 37, हाँ कैसे है? यूएस का प्रेसिडेंट जो बेसिकली यूनियन और स्टेट लॉ के अंदर में इंडिया में होता है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ओनली टू फेडरल ऑफिस, सिर्फ फेडरल लॉ के अंदर होगा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस. यूएस स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो पार्डन डेथ सेंटेंस. इंडिया में गवर्नर डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता. दूसरा, प्रेसिडेंट इंडिया में जो enjoy करते हैं पार्डनिंग पावर, they have to listen to the aid and advice of the consular minister under article 74. लेकिन यूएस के पावर अपने पास है, मतलब खुद ही पार्डन कर सकता है. तो यही है. तो Proudhon, we have discussed in the socialism when we are discussing कि Proudhon वहां पर what is property नीचे में होगा. What is property? तो 1940 में he discuss कि the human should be integrated with the nature
और जो सोशलिज्म जो होना चाहिए, इट शुड फोकस ऑन अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा। तभी जाके म्यूचुअलिज्म हो सकता है विथ रिगार्ड टू वर्किंग क्लास, पेजेंट क्लास एज वेल एज द होल नेचर सिस्टम, ताकि मोनोपलाइजेशन टेंडेंसी ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम बोर्जुआ गेट्स रिड्यूस, एंड ऑल्सो जो ट्रेड यूनियंस है उनका पावर बढ़ना चाहिए, प्लस जो बिजनेस क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, उनका पावर कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गया, तो उनका कहीं कहीं डिक्रीज होना चाहिए। तो देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ वॉलंटरी एंड इक्विटेबल एक्सचेंजेस सबके बीच में। उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए? पहली बात है कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, म्यूचुअलिज्म, कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो बना रहे हैं उनका राइट्स, उनका अधिकार, उनका सोशल सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम स्टेट जो एक एक स्टेट जो एक इंस्टीट्यूशन है विथ रिगार्ड टू द वायलेंस दैट इज सपोर्टेड बाय द बोर्जुआ क्लास, इट नीड्स टू बी अबॉलिश्ड। स्टेट कंट्रोल रिमूव कर देना चाहिए और एनार्की, फॉर एग्जांपल फोकसिंग ऑन टोटल इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम का बात होता है, एनार्किज्म होता है बात, उसे फोकस करना चाहिए। तो इनका एस्पेक्ट था। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है कि बेसिक जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं दे हैव टू गो थ्रू द स्टेट, बिकॉज स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर इन सोसाइटी। वही डिसाइड करते हैं कि जो भी लॉज इम्प्लीमेंटेशन होगा या पिनलाइजेशन प्रोविजन होगा वो स्टेट ही होगा, वो कोई और न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। न्यूट्रल आर्बिट्रेटर नीड्स टू बी सपोर्टेड। एट द सेम टाइम मार्क जो मार्क्सिस्ट है वो क्रिटिसाइज करते हैं प्रूडॉन को ऑन द बेसिस कि उनका जो म्यूचुअलिज्म है वो कहीं ना कहीं कोर इश्यू ऑफ कैपिटलिज्म को डील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोर इश्यू ऑफ कैपिटलिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। वो म्यूचुअलिज्म डील नहीं कर पाते हैं इसमें। दूसरा इसमें बात होता है विद रिगार्डिंग टू कि आप अगर पूरा एबॉलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उससे एसोसिएटेड प्रॉफिटेबिलिटी आइडिया जनरेट होता है अंडर द एडम स्मिथ, वो नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा कि स्टेट विल यूज द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सबके पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकता है कोई भी स्टेट का, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग क्लास का प्रोडक्टिविटी हो, एक्सेट्रा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना बहुत मुश्किल है। तो ये क्रिटिसिज्म है। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं एक सेकंड, कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर में आते हैं, 2013 एक्ट के अंदर होगा। नहीं, हाँ, कंपनीज एक्ट 2013, इनके अंदर पावर्स मिला है टू डील विद द इशू। SFIO इन्वेस्टिगेशन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, IAS IPS IACS IRS, इन्वेस्टिगेट करते हैं रिगार्डिंग द कंपनीज और उनके जो अनएथिकल एस्पेक्ट होते हैं। वी डिस्कस दिस वन कि ट्रम्प और उनके बीच में। तो अभी साउथ अफ्रीका ऑलरेडी बोला है देयर इज नो प्लान टू डेवलप कॉमन ब्रिक्स करेंसी, तो उसका नहीं है। लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन ऑल्टरनेटिव मेथड, जो ना बात करते हैं जैसे डी डॉलरेशन प्रोग्राम में रूपी टू रूबल ट्रेड हो गया, रूपी टू लोकल करेंसी ट्रेड, इंटरनेशनल से रूपी, या रूल ऑफ सीबीड। So उसको देख के we can say कि instead of developing any new currency, we can promote the existing currencies which are हाँ, already into dollar. देयर विल बी a give and take। हाँ, EM, our foreign minister have already stated कि ट्रम्प 2.0 जो होगा, it will focus on America first, it will focus mostly on tariff and trade measure, so there will be a certain kind of a issue between the Trump administration and India on the economic aspect। लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो रहेगा शुरू से, चाहे वो बेका का रहे, चाहे वो I2U2 का रहे, आई सेट का रहे, सब चीज वो रहने वाला है। लेकिन जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें इशू रहेगा। लेकिन उसमें क्या करेंगे हम लोग एक नॉर्मली गिव एंड टेक रहेगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, विथ रिगार्ड टू टैरिफ मेजर्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। तो रूपी प्लंजेस टू रिकॉर्ड लो, इंडियन रुपी 0.25 एज कम्पेयर टू बाकी करेंसी, ड्यू टू द ग्लोबल इन्फ्लेशन, chances of recession, as well as oil
के जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज वाई। तो लो रुपी जो रुपी जब डिप्रिशिएट करते हैं उससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होता है, उससे रेमिटेंसेस है वो बढ़ने का चांसेस रहता है, टूरिज्म बढ़ सकता है डिप्रेशन रुपीज से। लेकिन एट द सेम टाइम अपना जो एक इंटरेस्ट पेमेंट मैकेनिज्म है वो भी बढ़ता है, तो ओवरऑल जीडीपी इम्पैक्ट करता है। दूसरा कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड वो बढ़ता है, उसी कारण प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो दोनों डुअल इशू होता है रुपये का डिप्रिशिएट करने। And also RBI intervenes परचेजिंग पावर, हाँ। in the market also by हम्म selling the dollars because rupee depreciates. हम्म। सिमिलरली ये हम लोग का जो है कि रूबी फॉल क्यों हो रहा है, पहला रीजन है चाइनीज डंपिंग, एट द सेम टाइम ट्रम्प पॉलिसी जो होने वाला है विद रिगार्ड टू अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ और डी डॉलरेशन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल बोला कनाडा को कि 51 स्टेट बन जाइए आप यूएस का। नेक्स्ट, तो हम लोग इकोनॉमी की बात कर लिए, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सिमिलरली जो पैटर्न रहा है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो सेम रहने वाला है। ऐसे यूएस टाइटन कर्व्स ऑन चाइना एक्सेस टू पार्ट्स फॉर एआई एंड चिप्स, आईसेट के अंदर में इंडिया विल इंक्रीज द पार्टनरशिप विद यूएस इन चाइना प्लस वन पॉलिसी एंड एज वेल एज फोकसिंग ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। चिप फॉर अलायंस जैसे जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस और ताइवान, ये चारों एक तरह से ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म प्रमोट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू क्रिटिकल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी क्या हुआ अचानक से, पीआरसी हैज स्टेटेड इसी साल इन सितंबर कि दे हैव द एडिक्वेट टेक्नोलॉजी टू बिल्ड चिप्स। अब जरूरत ही नहीं है यूएस या बाकी वेस्टर्न कंट्री का, उनके पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी है ही। तो ये दिखाता है कि हाउ द चाइना हैज बीन एबल टू यूज द री-इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एंड ऑल्सो द वायलेशन ऑफ आईपीआर, और बाद में भी उन्होंने बना दिया चिप्स which can be used in the integration of the weapon system as well as in critical infrastructure. That is why US is blacklist. तो इसमें बात हुई है कि गिव एंड टेक पॉलिसी में यूएस का प्रेसिडेंट का जो थ्रेट रहा है, इट इज अ थ्रेट ऑन पेपर, बट वी हैव टू नेविगेट आवरसेल्फ। कैसे हो सकता है, वी हैव टू ओपन आवर इकोनॉमी इन सर्टेन एस्पेक्ट, और at the same time we can use the US influence to improve our service export or even manufacturing export। एफडीआई बढ़ा सकते हैं यूएस के अंदर में जाकर के। तो अगर if Indian companies are also investing in US, for example Mahindra या बाकी सब, तो there will be a chances that there will be a very accommodative policy by both the country। we have discussed कि 4 3 जो दिसंबर है उसको दिव्यांग डे मनाया जाता है। तो स्किल ट्रेनिंग इम्पार्टेड 2 लाख दिव्यांग जन, 29 लाख दिव्यांग जन बेनिफिशियरी हैव बीन गिवन असिस्टेड डिवाइसेस, जो 90% इसके पास नहीं है उसमें से दे रहे हैं। यूडीआईडी कार्ड भी दे रहे हैं ताकि पता लग सके। प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनको स्पेशल अटेंशन देंगे, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। सिर्फ वंदे भारत में नहीं होना चाहिए, पूरा रेलवे स्टेशन में होना चाहिए, पूरा पब्लिक यूटिलिटी मैकेनिज्म डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस सब में होना चाहिए। प्लस पैरा एथलीट जो 29 गोल्ड जीते हैं अभी, वो दिखाता है कि इंडिया का जो फोकस है विथ रिगार्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ दिव्यांग जन, इट्स सक्सेसफुल। तो हम लोग और भी करें, कैसे करें, जब टेक्नोलॉजी यूज करें, उनको टेक्नोलॉजी देंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्चरी में एक स्पेशलाइज्ड पर्सनलाइज मैकेनिज्म किट बनता है, उसे फोकस करेंगे तभी। तो 700 प्लस 90 प्लस एयरपोर्ट हैज बीन फ्रेंड दिव्यांग जन फ्रेंडली, तो ये एग्जाम्पल है। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और ठीक है, लेकिन छोटे छोटे जगह पर में फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्कूल हो गया, बस स्टॉप हो गया, इवन थिएटर हो गया, एक्सेट्रा, ऐसा कुछ। रिगार्डिंग द
capacity building of the Indian Navy, Scorpion submarine, and 26 Rafale jet for the Vikrant aircraft carrier will be negotiated and deal by January 2025. 95 ships चाहिए next 10 years for becoming future ready. और 2 nuclear submarine SSN जिसको बोलते हैं by first one by 2036 and second one by 2 years from there. It is needed to increase the capacity building. Submarine क्यों important? क्योंकि ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंडिया is not talking about creating a blue navy for worldwide policing. India is talking about only stating the policy of Sagar or giving the security mechanism to the Indian Ocean region. उसमें ऑलरेडी इनके पास अंडमान निकोबार आइलैंड है, इवन सेशल्स है, इवन ऐसे जो एक वहाँ सेशल्स के अंदर में सेशल्स था ना कि मॉरिशस नहीं, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स नहीं है, सेशल्स है। सेशल्स मॉरिशस के अंदर में एक आइलैंड है जहां पर इंडिया डेवलप कर रहा है बेस। इवन इन आगरनगा आइलैंड। हाँ, आगे लगा आइलैंड। और दूसरा फिर लक्षद्वीप हो गया। ये 3 जगह तो ऑलरेडी एक तरह का बेस है ही, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत कम जरूरत पड़ता है इंडिया को। लॉन्गर रन वी नीड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सबमरीन बिकॉज इट क्रिएट्स अ फोर्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं एयर वाटर सी, तो अंडर सी भी आ जाता है इसमें। तो न्यूक्लियर ट्राइड ऑलरेडी इंडिया बन चुका है, तो लॉन्गर रन में टू डिटेल द पाकिस्तान चाइना एज वेल एज the overall trade that has been going through in the Indian Ocean region, India will be able to keep eye on it. तो प्रोजेक्ट 75 है जिसमें 6 स्कॉर्पियन सबमरीन है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है बाई मजोंगन डॉक, वो और भी इसको ऐड करें। Central Ministry have been discussing a proposal that mandate the public sector unit to purchase 10% from the requirement from the startup. अब स्टार्टअप एमएसएमई के भी हो सकते हैं, न्यूली फॉर्म्ड स्टार्टअप भी हो सकते हैं, टू improve the capacity of the MSME and to implement मेक इन इंडिया प्रोग्राम। व्हाट इज नीडेड कि डिमांड क्रिएट होना चाहिए, और डिमांड के बाद ही ओवरऑल उनका वायबिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा। उसके लिए इंडिया ने बात कर रहे हैं विथ रिगार्डिंग टू दिस कि 10% रिक्वायरमेंट उनका डेली यूजेस है वो स्टार्टअप्स है, फॉर एग्जांपल लेबर, केमिकल, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई एक्सेट्रा, सब चीज। 67%, 69 नंबर यूनिकॉर्न है इंडिया में, $9.2 बिलियन वीसी फंडिंग है। स्टार्टअप 1,50,000 स्टार्टअप है, और 5 करोड़ जॉब विल बी क्रिएटेड बाय द स्टार्टअप दिस डिकेड। तो इसे डिमांड बढ़ेगा ओवरऑल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी सबके लिए। इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, अभी हाल फिलहाल देखा कि फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ से, तो दिखाते हैं वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ अ मेजर टू टैकल द इन्फ्लेशन। तो एमपीसी क्या कर रहे हैं अभी, तो एमपीसी को पावर्स दिया गया है फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4 ±2% के विद इन, एंड इट reviews and assesses the overall inflationary stand in the country and accordingly उसमें पॉलिसी कट होता है, मेजर्स लिया जाता है अकॉर्डिंगली। तो रेपो रेट 6 member setting panel is likely to keep repo rate unchanged for the 11th straight time this week despite the quarter growth to 5.4%। तो इसमें रेट कट क्यों नहीं होगा, मतलब इसमें रेट सॉरी रेट चेंज क्यों नहीं होगा इसमें, रेट तो चेंज उनका स्टैंड कहाँ दिया हुआ है? रेट चेंज इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन इज हाई, वो नीचे नहीं आ रही है, स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन इज स्टिकी। सो हाँ, इफ तो रेट कट तो नहीं होगा, तो रेट कट नहीं होगा तो रेट बढ़ना चाहिए ना फिर थोड़ा सा कम नहीं, से कम। और नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि वो भी फिर ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, हाँ जिससे ज्यादा रेट हाई होगा ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। जैसे यहाँ लिखा भी है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर्स द होम लोन्स हैज बिकम मोर कॉस्टली, तो बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीजेस व्हिच हैम्पर्स और व्हिच
impacts the investment rate in the economy. So that is why there is always this trade-off between containing inflation and the growth rate. हाँ ठीक है ठीक So है। that is why we talk about there should be more policy coordination between, even if it's monetary policy and the fiscal policy. The changes which are happening, or the downward filtration, that needs to be in sync with the changes within. ठीक। GDP base year to change to 5 FY23। आप बेस ईयर को इसमें बना देंगे तो आपका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस ईयर आपका ऐसा है अभी, क्योंकि अगर डिक्रीज हो रहा है तो एडवाइजरी कमेटी ने बताया। बेनिफिट ये होगा ना कि जो इट विल बी क्लोजर ईयर, अभी 2011-12 बेस ईयर हम यूज करते हैं, हम्म तो दैट इज लेस कंपेरेबल, इट इज नॉट टेकिंग टू अकाउंट जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर हम्म। ठीक। used. तो उसे जो, कोविड-19 रिप्लेस हो जाएगा ना, उस समय का जो इशू था। हाँ, जो इम्पैक्ट था वो भी आ हम्म जाएगा, और उस टाइम पे थिंग्स बिकेम स्टेबल ऑल्सो। हम्म, तो बड़ा कर दो। हम्म। तो पब्लिक स्कूलिंग इट लैग्स बिहाइंड चाइना, क्योंकि जो ओवरऑल पब्लिक स्कूलिंग मेथड था इट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर पहले, based on the Macaulay policy, which was already followed after independence। हायर एजुकेशन में पब्लिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट था, और बाकी मास एजुकेशन में आरटीई है, लेकिन देयर हैज बीन अ गैप विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिविटी, एज वेल एज क्या वो वाइबल है विद रिगार्ड टू चेंजेस इन द मार्केट ट्रेंड। तो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी का इशू आता है, स्किलिंग गैप का इशू आता है विद रिगार्ड, एंड ऑल्सो विद रिगार्ड टू द वी कैन से टीचर्स और उनका स्किलिंग रिगार्डिंग पब्लिक स्कूलिंग। तो व्हाट इज नीडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो जो बच्चे हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि वो टीचर बन सके, प्रोफेसर बन सके, क्योंकि जो इंडिया में एक तरह से जो एकेडमिकली आगे रहते हैं तो दे माइग्रेट टू यूएस एंड अदर्स, और जनरली टीचर और प्रोफेसर नहीं बनते। तो पहला ये मेंटालिटी चेंज करना जरूरी है समाज के अंदर में। दूसरा भी इम्पोर्टेंट है कि बजटरी आउटले जो होता है वो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट होता है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो लोअर पार्ट एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इट इज सपोर्टेड बाय मोस्टली स्टेट। और दूसरा मिड डे मील के कारण ही एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट हो रहा है। तो मिड डे मील के कारण इनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो कन्वर्ट हो रहा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में, या फिर रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट बियॉन्ड 8 years ऑफ 8 स्टैंडर्ड, 14 years ऑफ एज के बियॉन्ड वो हो रहा है? ये चैलेंज आज भी है, ये 14 years तक आपका आरटी है, उसके बाद का क्या? तो हम लोग काम कर सकते हैं इसमें, पीपीपी मॉडल कर सकते हैं इसमें, फिर सीएसआर फंडिंग का रोप इन इसमें ले सकते हैं, और सब एस्पेक्ट। और दूसरा कास्ट सर्वे एक और है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी के अंदर में 80% प्रोफेसर जो थे वो जनरल कैटेगरी थे। क्या इंक्लूसिविटी फोकस कर सकते हैं? कैसे करेंगे? जब ट्रेनिंग में फोकस करेंगे, और SC ST एंड अदर ओबीसी, तभी हो सकता है। अफ्रीका, इंडिया अफ्रीका के लिए मॉरिशस स्ट्रेटेजिक गेटवे है। कैसे? कि मॉरिशस इज अ एक्सटेंडेड नेबरहुड, इट इज पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी इन द मैरिटाइम डोमेन। और जो अफ्रीका रीजन है थ्रू द मडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीका, सोमालिया से नीचे जो जाम्बिया हो गया बाकी सब, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का रीच बढ़ते जा रहा है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर। तो मॉरिशस एक लिंच पिन है, बीच में आते हैं। तो फर्दर कैसे? तो मॉरिशस और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड $700 million है, और फोकस कर रहे हैं कि सीपा CCPA भी साइन करेंगे इन सेवरल एरियाज, बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। इट इज इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, क्योंकि मॉरिशस एक तरह से बोल सकते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। तो मॉरिशस के थ्रू हम लोग जो प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि जो अलग अलग रीजनल ब्लॉक है, कोमेसा, CADC, इसको हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं मॉरिशस के थ्रू। उसके बाद फिर
जो मॉरिशस कैन बी ऑल्टरनेटिव रूट फॉर द इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ऐसे इंडिया में सेशल्स और बाकी जगह से आता है, तो मॉरिशस से इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट आता है, एफडीआई आता है, तो उसमें हो गए। मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड सागर इन्वेजन में मॉरिशस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले, $100 मिलियन लाइन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है, सागर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड रूट एंड ऑल्सो चेकिंग ऑन द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। प्लस जो सक्सेसफुल मॉडल होगा मॉरिशस के अंदर में, इट कैन बी रेप्लिकेटेड इनटू द अफ्रीकन रीजनल अफ्रीकन ब्लॉक एंड एज वेल एज द ओवरऑल AFCTA, दिस इज इन अफ्रीकन फ्री ट्रेड जो है। क्योंकि मॉरिशस मॉरिशस पार्ट है अफ्रीका का, और मॉरिशस को अगर डेवलप करेंगे उसके साथ साथ आसपास केनिया, केनिया को भी फाइनेंशियल सर्विस और उससे एसोसिएटेड एड चाहिए जो मॉरिशस कैन प्रोवाइड। तो अगर इस पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अदर अफ्रीकन कंट्रीज विल फॉलो द मॉरिशस पाथ और इंडिया का रीच बढ़ सकता है। इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, BNS, न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा एज वेल एज साक्ष्य संहिता, इट फोकस ऑन जस्टिस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। करेक्टिव जस्टिस बात होता है rather than punitive always। दूसरा, डिजिटल मीडियम क्राइम टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइंड, कम्युनिटी सर्विस डिक्लेयर्ड। दूसरा की रैशनलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज हुआ, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ कुछ कुछ पॉलिसीज का, तो दिखाते हैं कि इंडिया का स्टैंड है विद रिगार्ड टू डीक्रिमिनलाइजेशन एंड मेकिंग द जस्टिस मोर अफोर्डेबल, इक्विटेबल एंड रीचिंग टू द ग्रासरूट लेवल। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, 23 लाख हेक्टर फॉरेस्ट cover has reduced since 2000। NGT have taken up the matter। 6% डिक्रीज हुआ है ट्री कवर में। तो रियल टाइम ट्रैकिंग के बेसिस से पता चला ये हर एक एस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल आसाम के अंदर में 3,24,000, मिजोरम के अंदर में 3,12,000, फिर मणिपुर में 2,40,000। तो ये दिखाता है कि क्यों डिक्रीज हुआ है, रिपोर्ट मांगा गया है, और कहीं ना कहीं जो FSI है उनका क्या स्टैंड रहा है विद रिगार्ड टू दिस। क्योंकि फॉरेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्बन सिंक और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन द कंट्री। 4% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में, 4 to 8% के बीच में, 16% पॉपुलेशन है, 4 to 8% के बीच में बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड वाइड। तो टू मेक द कैंपा इसमें एस्पेक्ट आता है टू मिटिगेट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। UNCCD जो बात की तो उससे रिलेटेड बॉन्ड चैलेंजेस आ गया, उसका लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का आता है कॉन्सेप्ट इसमें। कैंपा हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री फोकस कर सकते हैं। बाबू's wife hold an ex officio post in society, सुप्रीम कोर्ट हैंड क्वेश्चन regarding this। कैसे? तो जिला परिषद महिला समिति वहां पर DM's वाइफ by recognizing her only as a patron। तो on the basis of co warranto on what body, कि कैसे वो अज्यूम कर सकती है विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ समिति। DM's वाइफ वुड कंटिन्यू टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ समिति। तो ये गलत है क्योंकि सी इज नॉट ऑफिशियल। और कहीं ना कहीं एक जो पहले सिस्टम था कॉलोनियल माइंडसेट में कि DM की वाइफ रहेगी या फिर काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, तो इट शोकेसेस द इन्फ्लुएंस पेडलिंग बाय द ब्यूरोक्रेट एज वेल एज द फैमिली इन द पॉलिटिक्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। वो ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और डीकोलोनाइजेशन ये सब एस्पेक्ट होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं डीकोलोनाइजेशन इन ऑल द एस्पेक्ट, नहीं जहां पर डीकोलोनाइजेशन इज, जहां पर कॉलोनियल माइंडसेट इज हार्मिंग द ग्रोथ एंड ओवरऑल इक्वालिटी ऑफ द कंट्री, वहां पर डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। तो एक एग्जांपल इसका। एक और एग्जांपल था जब हम लोग वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द मॉडल प्रिजनर प्रिजन कोड तमिलनाडु में, जहां पर इट वाज प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एज वेल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कास्ट, वहां पर डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए। प्रगति, जैसे प्रगति
फॉर एग्जाम्पल गति शक्ति का काम है कि कोऑर्डिनेशन करना, एक्सेस करना और डिस्कशन करना, डेलिब्रेशन करना ऑन वेरियस इश्यूज, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है। प्रगति क्या है कि ट्रैक करना कि जो प्रोजेक्ट है इट इज मूविंग अहेड इन फास्टेस्ट स्पीड और नॉट। तो ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं प्रगति। मोर देन 340 प्रोजेक्ट, 17 लाख करोड़, इट हैज बीन फास्ट ट्रैक बाय प्रगति। तो रिव्यू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो गति शक्ति हो गया कोऑर्डिनेशन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए प्रगति। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जीडीपी गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 3 बच्चे होना चाहिए, तो खर्चा कौन उठाएगा परिवार का? तो हो भाई, तो उसका दिखाते हैं कि कैसे वाइफ ने क्वेश्चन उठाया। और 20 क्वेश्चन विद रिगार्डिंग टू द ईएमई ईवीएम आंसर्ड। जो चिप इसको डिटेल में लेते जल्दी से। प्री प्रोग्राम होता है पर्टिकुलर पार्टी, तो ऐसा नहीं होता है, इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस, एक ही बार हो सकता है। और हर इलेक्शन के पहले 1000 वोट का मॉकिंग होता है। कुछ कोड को डाल सकते हैं, प्रोग्राम जो होता है ओटीपी चिप में अंदर में डाला जाता है, बर्न किया जाता है, मॉडिफाई नहीं किया सकता। तो पहला 2 चीज होगी, एक तो एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, दूसरा बर्न नहीं, दूसरा मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट इज बर्न, ओटीपी चीज कैन नॉट बी रीप्रोग्राम। कभी दूसरा हो गया डिस्प्ले, आउटपुट होता है, इनपुट कुछ उसके अंदर में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ईवीएम से आउटपुट ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीवीपैट हो गया, वो आउटपुट हो गया, इनपुट डाल नहीं सकते ईवीएम के अंदर में। मल्टीपल वोट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर बटन लाना पड़ता, तभी आप वोट दे सकते हैं। मैल फंक्शन कैसे होगा? तो ऑटोमेटिकली इंडिकेटर वहां पर डिटेक्ट होगा। वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो सकता उसमें भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग होता है, मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड होता है, इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टैंपर सील सब रहता है इसके अंदर, चेंज नहीं कर सकते। वीवीपैट होता है, जो लोग देख सकते हैं जिसको वोट उन्होंने दिया है, वो भी हो गया। तो इससे क्वेश्चन उठता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें जो लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं, वो क्या उसके अंदर में चेंज नहीं कर सकते? तो बोले मल्टीपल एजेंसी के अंदर में सिक्योरिटी ऑडिटर भी है, तो वेरीफाई किया जाता है हर बार, तो एक एस्पेक्ट आता है। जहां पे ईवीएम रखा जाता है वहां का हमें 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस होता है, टैंपर एविडेंस सील होता है, रैंडमाइजेशन होता है, डिफरेंट ऑफिशियल रहते हैं, इवन पार्टी मेंबर भी रहते हैं बाहर। फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, हाँ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होता है, चेक करते हैं कौन सा ईवीएम कहाँ पर गया है। 48 आवर बैटरी बैकअप भी होता है, अगर बैटरी अगर खत्म भी होता है तब भी वो रहेगा। वोटिंग डेटा रिमेन्स इंटैक्ट। 99% जो डिस्प्ले है वो बैटरी चार्ज, बट वोल्टेज थ्रेशोल्ड है बेसिकली, जो चाहिए चलाने के लिए पूरा। इसलिए ईवीएम डेटा जो है वेरीफाइबल है। ईवीएम का टेम्परेचर 55 डिग्री तक चलता है अंडर हाई ह्यूमिडिटी लेवल, इसलिए वो हेवी रेन में भी चलता है काम। वीवीपैट में दिख जाता है कि जहाँ जिसको आप वोट दे रहे हैं। इलिटरल वोटर भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम भी रहता है और बगल में सिंबल भी रहता है, और ब्रेल मार्किंग भी है साइड में। तो ये दिखाता है कि हाउ द ईवीएम is being manufactured under the BEA, as well as how the Election Commission of India ensures that free and fair election conducts it is conducted in states as well as in national election. तो स्पेस debris and associated challenges बहुत important aspect है, because it not only leads to the overall damage to the air spacecraft, as well as it damages the satellite. तो 14,000 सैटेलाइट, इनको 3,500 एक्टिव सैटेलाइट अभी है, तो डैमेज हो सकते हैं। दैट इज वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स टू एसेस द स्पेस डेब्रिस। कितना स्पेस डेब्रिस है? 120 मिलियन, तो इसको लिख सकते हैं 120 मिलियन स्पेस डेब्रिस है। इट इज लॉन्च वियर एंड टेयर के कारण होता है। इट हार्म्स ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द स्पेस क्राफ्ट
सो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू रिमूव स्पेस डेब्रिस। कैसे कर सकते हैं? तो पहला एस्पेक्ट होता है कि जो भी स्पेस सैटेलाइट यूज किया जाता है, इसको POEM के थ्रू यूज करके वापस से इसको बर्न कर सकते हैं इन एटमोस्फेयर इटसेल्फ। ऑलरेडी नासा और इसरो दोनों ने ये दिखाया कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि यूज ऑफ मैग्नेटिक spacecraft and other kind of a thing can be used to remove the space debris. और दूसरा tracking of the space debris can be done with the use of data sharing. तो इसमें क्वेश्चन उठा है कि आपको बेल ग्रांट हुआ लेकिन आपने अगले दिन ही मिनिस्टर बन गए, तो इसका नीचे करो। जैसे पोस्ट बेल, फॉर एग्जाम्पल जो बेल मिला है इसका मतलब ये नहीं कि वो गिल्टी नहीं है, तो बेलेबल ऑफेंसेस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंजेंट ऑफेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल PMLA UAPI के अंदर में भी, लेकिन बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, इसको फॉलो किया जाता है हर एक एस्पेक्ट में। तो अगर बेल मिला इसका मतलब ये नहीं कि आपको वापस से पब्लिक ऑफिस अटेंड करना जरूरी है। देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन पुट ऑन देम, ताकि मिस यूज नहीं हुआ। हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो मिनिस्टर है उनको बेल मिला और वो पुलिस के यूज करके इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर पाए। तो कहीं ना कहीं अगर बेल मिल भी रहा है तो देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ कूलिंग ऑफ पीरियड, और ओवरऑल जो mechanism which should be put on the minister as well as the official and as well as the normal public, so that they cannot impact the overall investigation processes। क्योंकि देखा जाता है कि विटनेस टैंपरिंग, इवन एविडेंस टैंपरिंग, विटनेस को धमकाया जाता है, एविडेंस टैंपरिंग होता है और ऑफेंसेस क्रिएट किया जाता है। तो बेल इज अ प्रोविजन, जेल इज अ एक्सेप्शन, लेकिन वी हैव टू पुट सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेल पीरियड आफ्टर द पोस्ट बेल मैकेनिज्म। बोलना मत। नहीं आशिक। So thank you everyone. We will take up next set of important news for discussion in detailed manner for PT and mains perspective. Do subscribe to Answer.